Assalamu alaikum, 9th class students. Hope you all will be fine and doing your homework properly. In lecture number 7 class, we have studied about the states of matter in detail, and I have told you about the kinetic description of matter, and in homework I gave you the question to write about the kinetic description of matter and define matter. Hopefully you all are doing the work properly on time, and okay, now class, in my lecture number 8 we will discuss new topics. There are many different terms here which we will study today, but before starting it, I would like to recall few points from the previous lecture. Okay class, in the previous lecture we have discussed that what is matter. You know that matter is anything which will occupy space and it will have the mass. Then after that we have discussed the kinetic description of matter. In kinetic description of matter, especially we have discussed about the arrangement of molecules, arrangement of molecules in different states of matter, like in solid, liquid and gases. In solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases, we have discussed the arrangement of molecules in solid, liquid and gases, and in the when we were discussing about the kinetic movement in solids, we have I told you about the vibrational motion, which is the back and forth motion of the molecules of solids. So hopefully you all are doing the homework. Please do it on time, and if you have any query, then you can ask me. Okay class, now we will move toward the next topic, that is the interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter. अच्छा क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने ये चैप्टर इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इजी है, इसके बारे में आप पहले भी बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं, तो जो है आपके लिए जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी चैप्टर लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ जो पिछली चीज़ें हैं वो रिकॉल कर लें. इसके बाद फिर हम न्यू चैप्टर्स की तरफ भी मूव करेंगे. ठीक है, अच्छा, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. आई थिंक आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा. इंटरकन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट होना. ठीक है, आपस में कन्वर्ट होना. किसका? स्टेट्स ऑफ मैटर का. ठीक है, कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर? लाइक सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू द गैस. ठीक है ना, सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड लिक्विड्स गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो जब ये कन्वर्ट होते हैं तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या होती है और कैसे कन्वर्ट होते हैं. ठीक है ना. अच्छा देखिए, when we take example of ice, right? When ice is heated, when the temperature will increase, ice is heated. कैसे आइस को हीट किया जाएगा, इसको रूम टेम्परेचर पे फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो क्या होगा? आइस विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. ठीक है, एंड व्हेन लिक्विड इज हीटेड, ठीक है, इट इज वार्म अप. लिक्विड को बॉइल किया जाए, हीटिंग किया जाए तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट और वेपर्स फॉर्म. ठीक है ना, वेपर्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स फॉर्म. ओके, डाउन क्लास, what happens with the molecules when the states will change? What happens with the molecules? जब स्टेट चेंज होती हैं तो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है. ठीक है, लेट्स सी दैट. देखिए, it's a ice cube. Consider, ठीक है, there are the molecules in that. They are very close to each other, very tightly packed to each other, and they don't have the gap, and they will show the back and forth movement inside it. ठीक है ना, यानी कोई
इजली अपनी ही जगह पे मूव कर रहे होते हैं, अपनी जगह पे जो है बैक एंड फोर्थ मोशन होती है इनकी, अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं पे जो है ना मूव कर रहे होते हैं किसी भी फैक्टर से इम्प्रेस होके, ठीक है। तो जो है ये बैक एंड फोर्थ मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, ठीक है। सो दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इनको हीटिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू, जब हीटिंग करते हैं दे विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। सो वी विल कन्वर्ट देम इनटू द कंटेनर, वी विल पुट देम इनटू द कंटेनर। कंटेनर यूज करेंगे, कोई ग्लास हो सकता है, कोई जग हो सकता है, कोई भी कंटेनर हो सकता है, कैटल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हम डालेंगे। तो क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड की जब हीटिंग की जाती है, इट इज सिंबल ऑफ हीटिंग क्लास, ठीक है ना। दिस ट्राइंगल शोज द सिंबल ऑफ हीट, ठीक है। दिस इज सिंबल ऑफ हीटिंग, right? So that's why I'm drawing here the triangle, writing the triangle. Triangle is a symbol of heating, ठीक है। तो हीट को रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल। अच्छा देखिए, जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस, नॉट गैप, डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस आता है। मॉलिक्यूल्स जो है इनकी वो पोजीशन नहीं होती, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, वही मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है ना। और दूर दूर होकर इस तरह से जो है ये जो है एरिया कवर कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन में फर्क आता है, और मॉलिक्यूल्स जो है जितना लिक्विड बनेगा उसमें ट्रांसफर करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में वो डिस्टेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द गैसेस, हाउ द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द गैस when we heat up the liquid, ठीक है ना। लिक्विड को हम हीट अप करेंगे तो क्या होगा, लाइक जस्ट लाइक एज वी आर हीटिंग इट, ठीक है ना। इसको हीटिंग कर रहे हैं हम, राइट, दिस इज द फायर एंड वी आर हीटिंग इट, ठीक है। कंटेनर इसको हीट अप कर रहे हैं, इट इज ऑन द स्टैंड, तो स्टैंड के ऊपर उसको रख दिया हमने, ठीक है, और उसको हम हीटिंग कर रहे हैं, राइट। इट इज ऑन द स्टैंड और उसको हम हीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो जब हीटिंग करते हैं तो क्या होता है क्लास, द हीट इज एनर्जी। व्हाट इज द हीट? हीट इज द एनर्जी, ठीक है ना। हीट एनर्जी है, इट इज फायर, फायर है ये, फायर प्रोवाइड्स द हीट एंड हीट इज द एनर्जी, एंड यू नो दैट एनर्जी विल डू सम वर्क, ठीक है ना। जब whenever we apply the energy it will do some work, जब भी एनर्जी अप्लाई की जाएगी तो एनर्जी कुछ ना कुछ काम करेगी, ठीक है। जब क्या काम करती है एनर्जी यहाँ पर, कि जब हीटिंग करते हैं तो वो इनके मॉलिक्यूल्स की का जो डिस्टेंस है उसको और ज्यादा फार करती है, फार अपार्ट करती है, यानी मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा दूर दूर करती है, ठीक है। अच्छा, जब होता क्या है कि जब हीटिंग करेंगे तो पहले जो हीट है ये बॉटम के थ्रू इट विल ट्रांसफर इनटू द वाटर, ये वाटर में ट्रांसफर होगी, फिर ऐसा ऐसा इजहारी पूरे वाटर में स्प्रेड कर जाएगी, पूरे वाटर में फैल जाएगी, ठीक है। अब जब पूरा वाटर, पूरा कंटेनर फुली हीटअप हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अब जो लेकिन हीटअप हो गया है पूरा कंटेनर, लेकिन हम फिर भी इसको हीटअप किए जा रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ यूज होगी, इट विल कन्वर्ट it will be used in converting the molecules into the vapor form। ये जो molecules हैं यहाँ पर ये सरफेस पे आकर बबल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, और बबल्स फॉर्म करके इन्हें बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग करके ये वेपर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना, वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स, राइट क्लास। तो क्या होगा, वेपर्स बन जाएंगे, यानी जो है स्टीम फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में ये रिलीज हो जाएंगे वहां से, ठीक है। तो इस अगर आप सपोज कि आप जो है बहुत ज्यादा टाइम के लिए इस वाटर को फायर पे रख के छोड़ दो, ठीक है ना, फायर के साथ हीटअप करते रहो आप इसको, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो है ना वाटर लेवल जो है इट विल डिक्रीज, ठीक है ना। वाटर जितना हमने ऐड किया था कंटेनर में अब उतना वाटर नहीं है, वाटर कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो वो वाटर कहाँ गया, देखो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट्स अ लॉ, लॉ है कि मैटर कभी भी ना क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कहीं ना खत्म नहीं होता, ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, मैटर कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। हाँ, बट इट कैन चेंज द शेप, ये शेप चेंज कर सकता है। तो जो वाटर लिक्विड इज द मैटर, अभी जो लिक्विड है ये यहाँ से डिसअपियर कहाँ हुआ, कहाँ चला गया, इट हैज बीन टर्न्ड इनटू द वाटर वेपर फॉर्म, ठीक है। ये वेपर्स बन गया, स्टीम फॉर्म में आ गया, ठीक है, स्टीम फॉर्म में आ गया। अच्छा, यू कैन चेक इट, अभी को चेक भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक अब थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर कंटेनर पे थोड़ा सा अपना हाथ रख दे, थोड़ा ऊपर, ठीक है ना, अपना हाथ रख दे, तो क्या होगा, यू विल फील द स्टीम वाटर वेपर्स ओवर योर हैंड। आप अपने हाथ पे जो है ना उसके स्टीम या उसका जो वाटर पार्टिकल्स है वो फील करोगे। और इफ यू कैन कीप द
एनी लिड, कोई इसका ढकना या ढक्कन भी रख सकते हो आप, ठीक है ना, ढकना भी रख सकते हो, तो क्या होगा उसके ऊपर भी जो है ना वाटर पार्टिकल्स आकर उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इट्स अ प्रूफ दैट वाटर इट इज रिलीजिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज व्हेन इट कोलाइड विद द लिड इट विल कलेक्ट ओवर देयर, ठीक है ना। यानी जो है वाटर यहाँ से रिलीज होगा और जब वो किसी लिड से यानी कंटेनर के जो ढक्कन है, जो कंटेनर के जो लिड है उससे जब टकराएगा, या अगर आप थोड़ा डिस्टेंस में अपना हैंड रखते हो तो हैंड जब टकराएगा वो जो वेपर्स है, वो जो स्टीम है, वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट क्लास। सो व्हेन यू हीट अप द लिक्विड इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर, वाटर वेपर्स में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और यू कैन से इट विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम, ठीक है ना, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जब भी इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, यानी सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उसमें डेफिनेटली उसमें जो है उसमें चेंज आएगा, और अगर चेंज नहीं आएगा तो इंटरकन्वर्जन इम्पॉसिबल है। अगर चेंज आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे इंटरकन्वर्जन हो रहा है, वहाँ मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो जो है वहाँ चेंज हो रही है वहाँ पर। क्लास होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। इन योर बुक अंडर दिस टॉपिक मैनी टर्म्स आर गिवन हियर, ठीक है। कुछ काफी सारी टर्म्स जो है यहाँ पे गिवन है। ये तो एक ही प्रोसेस तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब इसके बाद कुछ टर्म्स को देखते हैं। ओके क्लास, द टर्म इज, नेक्स्ट टर्म इज sublimation. Sublimation. Sublimation is a process. It is a particular process. In the sublimation process, okay, in sublimation is a chemical process in which the solid will convert upon heating. Upon heating, solid will directly convert into the gaseous form. Okay, upon heating, it is a symbol of heating. Upon heating, solid will convert directly into the gaseous form without changing into the liquid. It is called as a sublimation process. देखिए अभी इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और अक्सर यही होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि इसके से हट के काम करते हैं। क्या करते हैं वो, कि जब हम उनको हीटिंग करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर, ठीक है ना, इस स्टेप को मिस करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी वो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉलिड जो हीटिंग करने पर, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर, ठीक है, इट इज अ कंडीशन, हीटिंग इज अ कंडीशन, हीटिंग नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। हीटिंग करने पर, हीटिंग इज अ एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और ये दे विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस फॉर्म, इनटू द वाटर वेपर फॉर्म, ठीक है ना। गैसेस फॉर्म या वाटर वेपर फॉर्म दोनों कह सकते हैं आपसे, ये वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपॉन हीटिंग, राइट क्लास। So that process is called as the sublimation process, and the substances which will show the sublimation process are called as the sublimed substances. Sublimed substances. Okay class? यानी वो substances जो कि sublimation process को follow करते हैं, sublimation process करते हैं, उनको हम sublimed substances कहते हैं। Now I will tell you about few examples of the sublimed substances. Number one is the iodine. Number two is the ammonium chloride. Formula is this one, NH4Cl, ammonium chloride. Iodine formula is I2. Okay, this is the formula NH4Cl. Number 3 are the naphthalene balls.
naphthalene, simply naphthalene you can say. Naphthalene, it is found in the form of balls. So में balls की form में मिलता है अक्सर, naphthalene balls भी कहते हैं, और simply you can say naphthalene, ठीक है ना. Iodine, ammonium chloride, naphthalene. I will show you the pictures later on. कुछ टाइम बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी pictures, ठीक है ना. Okay class, it is the sublimation process. Again I'm repeating, the substances which will the solid substances which will convert upon heating into the gaseous form without changing into the liquid form. यानी अगर हीटिंग ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो हीटिंग करने पर डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बगैर, यानी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते और डायरेक्टली सॉलिड से वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना. ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, और वो इन सब्सटेंसेस को कहते हैं सब्लिम्ड सब्सटेंसेस, ठीक है. एग्जांपल्स आर आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन. दीज ऑल आर द examples class. Okay, you can see that these are the iodine. They are of black color. They are used in the laboratory preparation of ammonia. ठीक है, solid होते हैं और black color में होते हैं. These are the ammonium chloride. ठीक है ना, solid particles हैं. White solid hard particles हैं ammonium chloride के. They are also used in the laboratory. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में यूज़ होते हैं. These are the naphthalene. ठीक है, नैप्थलीन पाउडर भी मिलता है, और ये नैप्थलीन बॉल्स की फॉर्म में भी मिलते हैं. ये लाइक जैसे कैम्फर बॉल्स होते हैं उनकी तरह नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है. Okay students, in today's lecture we have studied about the interconversion of states of matter and we have discussed about the sublimation process. Okay. अच्छा, और कुछ टर्म्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब कुछ. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क, ठीक है. द होमवर्क इज दैट आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस, ठीक है. लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, 2 क्वेश्चन दिए थे. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 3 क्वेश्चन. सो इट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना. शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन करने आपने, ठीक है. अच्छा देखिए, लुक एट द पेज नंबर 103. पेज नंबर इज 103, ठीक है. इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है. पेज 103, इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है. एक्सरसाइज से क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है क्लास? एक्सरसाइज से क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड, ठीक है. लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू हैव टू डिफाइन देम. डिस्क्राइब द इंटरचेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है ना. लिक्विड्स जो है गैस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे इंटरचेंज होते हैं, ठीक है ना. जब इंटरचेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट पे क्या फर्क आता है, कैसे जो चेंज आता है, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट. बुक पे बहुत ब्रीफली डिफाइन है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्डिंग, ठीक है. आप लेक्चर सुने मेरा, रिपीट में सुने, और जो है जो पॉइंट्स मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप भी डायग्राम ड्रॉ करके उन पॉइंट्स को अपनी ओन वर्डिंग में एक्सप्लेन करें, उन्हें लिखें, ठीक है. सो 9th क्लास बड़ी क्लास है, सो आई थिंक यू शुड ट्राई, ठीक है. आप लोग को ट्राई करना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. यू डू इट. होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड करें, आई विल ट्राई टू चेक इट. ओके, तो इजी है, यू कैन डू इट, आई नो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम पेज नंबर 103, हाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है ना. अब ये वही इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से टॉपिक है, क्वेश्चन है कि सॉलिड अब जो है लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ठीक है. पहले हमने पूछा कि लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट करता है, इस क्वेश्चन में पूछा कि लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, कैसे इंटरकन्वर्जन होता है वो बताइए डिटेल में. नाउ दे आर आस्किंग सॉलिड लिक्विड में कैसे इंटरकन्वर्जन करता है, ठीक है ना. तो सॉलिड लिक्विड में कैसे इंटरकन्वर्जन करेगा, उसकी जब वो चेंज करेगा अपनी स्टेट, तो उसकी जो है मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, किस तरह से होगी, क्या फर्क आएगा, क्या प्रोसेस होगा, जाहिर हीटिंग होगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसके थ्रू होगा ये.
तो ये सब जो प्रोसेस है इसको यू हैव टू डिस्क्राइब इन डिटेल, आपको डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना है। लेक्चर में सारे पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं डिटेल में। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द लेक्चर, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक में ना डिटेल में नहीं है लेकिन वहाँ पे भी ब्रीफली बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। यू ट्राई टू स्टडी दैट, और दूसरी बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो इट्स इजी, आई नो यू विल डू इट, ठीक है ना। इसको एटलीस्ट आंसर जो है इसको 6-7 लाइन्स का होना चाहिए आंसर, ठीक है ना, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। और जो है डायग्राम भी ड्रॉ करें साथ में, तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर इसका, ठीक है। अच्छा, 1 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, मैं खुद दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, तो इसलिए क्लास में आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट डिफाइन sublimation. Sublimation. Okay. You will get the definition from the book. बुक से मिल जाएगी आपको डेफिनेशन, ठीक है। समरी में देखें, सब इसकी जो बुक की समरी है, समरी में भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहां से भी डेफिनेशन मिल सकती है आपको, और बुक में तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, वहां से कर सकते हो आप, ठीक है। What are sublime substances? सब्लिम सब्सटेंसेस की जो है रिटर्न में डेफिनेशन नहीं दी हुई, बट आई टेल यू द सब्सटेंसेस व्हिच विल शो द सब्लिमेशन प्रोसेस, दे आर कॉल्ड एज द सब्लिम सब्सटेंसेस। आई एम रिपीटिंग, द सब्सटेंसेस व्हिच विल शो द सब्लिमेशन प्रोसेस आर नोन एज द सब्लिम सब्सटेंसेस। सब्लिम सब्सटेंसेस upon heating directly convert from solid state to the gaseous state. I'm again repeating, ठीक है ना। Sublime substances upon heating convert from solid state to gaseous state without changing into the liquid. ठीक है, इन सब्लिमेशन की जो डेफिनेशन है उसी को थोड़ा सा आपने इसमें एडअप कर देना है सब्लिम सब्सटेंसेस के हिसाब से, ठीक है। इसलिए कि ऐसा भी बोर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करके आपको इसका आपको ये अपने में स्किल डेवलप करनी चाहिए कि आप आंसर क्वेश्चन किस तरह से भी आ जाए, आप उसको आंसर कर सको। तो यू हैव टू ट्राई, यू हैव द टाइम, आपके पास अच्छा टाइम है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो बोर्ड में क्लास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो यानी कि एक्सरसाइज की वर्डिंग में क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आपको हर तरह से प्रिपरेशन करनी है, हर तरह से प्रिपेयर्ड होना है कि किसी तरह से भी क्वेश्चन है, सो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर, ठीक है। अच्छा, गिव एग्जाम्पल्स, यानी जो सब्लिम सब्सटेंसेस है इनकी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स है 3 एग्जाम्पल्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नैप्थलीन, राइट क्लास। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं, तो प्लीज आप जो है ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है दे सकते हैं, तीनों एग्जाम्पल्स लिख दें तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो होपफुली क्लास इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, यू विल डू इट प्रॉपरली ऑन टाइम। हम जो है आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट सम फ्यू न्यू टर्म्स, कुछ न्यू टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू योर होमवर्क प्रॉपरली ऑन टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।